Hi guys, hope you are safe at home as you know that corona pandemic is going on. Hope you are safe. And I Tushar Bajaj from channel Tushar's Learning Bureau welcome you to my channel, to my video about chapter colon petroleum. As you know now the days tuitions are not opening as there is a risk of corona infection. Therefore, all teachers are taking online classes, but some are not explaining good in the online classes, and some are facing problem. So our channel provide them notes and the explanation of the chapters beautifully, and they could explain. If they have any doubt, we provide you a comment box in which you can write. It's free of cost. So please subscribe my channel. It's free of cost. It does not cost you anything. And like my video if you hope so. And comment if there is any problem in my video. So welcome to Tushar's Learning Bureau. So let's start our video with the explanation of the chapter coal and petroleum. So let's go. So guys, here are my notes which will help you a lot. See, first of all, we are having the topics in the chapter, that is introduction, inexhaustible natural resources, renewable resources, exhaustible natural resources, non-renewable resources, coal, story of coal, uses of coal. These all the topics we are going to study in this chapter. So we will complete all the topics in only one video, which will be this video only. And you know we will complete this chapter in this video because it is a very short chapter and we will able to complete this chapter. So here is the introduction of the chapter. इस चैप्टर में पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कि रिसोर्सेज चार टाइप के होते हैं, मतलब रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें हम चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, हम चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. तो मैं आपको एक बार लिख के दे देता हूँ. वी आर हैविंग अ नेचुरल रिसोर्सेज. हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्सेज है. ठीक है, एक हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज है, एक हमारे पास ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, एंड दे आर वेरी पर्टिकुलरली गुड. ठीक है, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं. वी आर हैविंग नेचुरल रिसोर्सेज, वी आर हैविंग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, वी आर हैविंग ह्यूमन रिसोर्सेज. These are the three type of resources in which we can classify the resources. But in this class, you are also having under natural resources. The types under natural resources. They are like you can see there are two types of resources here it written, but here is wrong, as there are two types of natural resources. So two types of natural resources are renewable sources of energy, that are inexhaustible natural resources, and second is exhaustible natural resources, which are non-renewable resources of energy. And now we'll study about inexhaustible natural resources. I may tell you about brief that inexhaustible resources, it is clear from the word that it is inexhaustible. This means कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकते. ऐसे रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमारी नेचर में प्रेजेंट है. ठीक है, अब आप देख सकते हैं definition के थ्रू. They are renewable sources of energy that are replenished at a rate faster than at which they are consumed. इस लाइन का मतलब ये है कि जिस रेट पर उन्हें कंज्यूम किया जाता है उससे ज़्यादा रेट पर वो दोबारा बन जाते हैं. इसका मतलब ये है जितने रेट पर हम उसे बनाते हैं उससे ज़्यादा रेट पर वो कंज्यूम नहीं होता है. तो दिस रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है. ठीक है, सो वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं. तो आपको इनकी एक मैं इजी लैंग्वेज लिखवाता हूँ, आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन लिखेंगे. इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज which can be not exhausted by the human activities and are present in unlimited quantities. ठीक है, अब आप साथ के साथ नोट डाउन करेंगे हमारे नोट्स, पोस्ट डाउन द वीडियो करके. ठीक है, अब आप देखते हैं एग्जांपल्स क्या हैं इसके. आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर होगा टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी. ये मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ. इट्स टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी. ठीक है, अब आगे चलते हैं. तो इसमें सोलर एनर्जी भी आती है जिसमें हम यूज़ भी करते हैं सोलर कुकर, सोलर पैनल्स, जिनकी एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती बिकॉज दे कम फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स दैट इज़ प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ठीक है,
सन अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं है, बट उसकी लाइट रेज इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड दे कैन नॉट बी फिनिश एट ऑल इफ द अर्थ इज ऑल्सो फिनिश्ड। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट आता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज का दूसरा एक टाइप होता है जिसका नाम है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। आपको इसके वर्ड से क्लियर हो रहा होगा कि ये एग्जॉस्टेबल है, मतलब ये ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट हो सकता है। एग्जॉस्ट हो सकता है तो ये ह्यूमन एक्टिविटी से एग्जॉस्ट हो सकता है, तो मतलब ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। ऐसे आप याद रखेंगे कि वो ये था तो उसका वाइस वर्सा एग्जॉस्टेबल करेंगे। एज द वर्ड सेज द मीनिंग ऑल्सो दैट सेज। ठीक है, वर्ड से ही मीनिंग निकलता है, डेफिनेशन अपने आप बन जाती है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अब डेफिनेशन देखेंगे, मैं आपको इजी से लिखवाता हूँ, आप पोज डाउन करके नोट्स डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे आप कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज की मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूँ। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज एंड आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, अब इसका हम एक बार एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। और इस चैप्टर में जो हम इसमें मेन पढ़ेंगे वो कुछ ये है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा, जो मैंने हाईलाइट भी करा है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड दिस टू टॉपिक्स आर द मेन टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर एंड वी विल बी गोइंग टू डू मोस्ट ऑफ दिस ओनली। ठीक है, अब हम देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं उसमें मेनली फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, और इस चैप्टर में हमने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। तो फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं हम एक बार देख लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स होते हैं कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो हम इस बार पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में। एंड उससे पहले आप नोट डाउन करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स के एडवांटेजेस क्या हैं पहले हम वो पढ़ लेते हैं। एक तो ये होगा इजी अवेलेबिलिटी है, हीट बहुत जल्दी वो जनरेट, हीट बहुत ज़्यादा जनरेट करता है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। ठीक है, ये दो इसके एडवांटेजेस हैं, ये आप लर्न करेंगे और अपने नोट्स में भी नोट डाउन करेंगे। नोट्स तो बनाने बहुत ज़रूरी हैं और नोट्स आपने बनाने हैं। आपको फ्रेश रेडीमेड नोट्स मिल रहे हैं, तो मैं इसकी लिंक भी डाल दूँगा और आप एज ए गूगल पे जाके studyrankers.com से इनको ले भी सकते हैं। ठीक है, दे वेरी गुड नोट्स। ओके, सो ये दो इसके आपको एडवांटेजेस मिल गए होंगे। अब कोल एंड पेट्रोलियम जो है, इसमें हम मेन स्टोरीज, मैं आपको बताया था ना इसमें आपको स्टोरीज बताऊंगा, तो इसमें जो दो मेन स्टोरीज है जो मैंने आपको बतानी है वो कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में। आप तो सोच रहे होंगे क्या स्टोरी है। तो पहले एक बात बताओ, कोल कैसे बना, किसी को पता है? एनी गेसेस? सो कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको पता होगा कोल कैसे बना है। ठीक है, तो कोल बना कैसे है, पेट्रोलियम बना कैसे है, उसकी यूजेस क्या, उसके प्रोडक्ट्स क्या निकलते हैं, ये हम फर्दर पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जो इसके अंदर नहीं लिखा है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, आप लिखेंगे। डिसएडवांटेजेस जो हैं ये है कि वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन करता है, इट कॉजेज पॉल्यूशन। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा लिखेंगे इट कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों लिखेंगे। इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू राइज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट। 3 पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं, अगर आपको दोबारा रिपीट करवाने हैं तो आप बैक जाएं वीडियो में और दोबारा सुन लें, जिससे आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम चल के ज़रा एक बार समझते हैं कि ये कोल एंड पेट्रोलियम बना कैसे, एक बार हम जाके देखते हैं। तो अब हम अपने बोर्ड पर आ चुके हैं, तो अब हम देखते हैं कोल बना कैसे। किसी की अगर गैसेस हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, आपका भी मैं पढ़ूंगा क्या व्यूज़ है आपके कोल कैसे बना। तो हम देखते हैं कैसे बना। आपको पता है पहले हमारी अर्थ पे डेंस फॉरेस्ट थी। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारी डेंस फॉरेस्ट की अबव लाइन हॉरिजॉन है। ठीक, यहाँ पर हमारे क्या थे, डेंस फॉरेस्ट थे। क्या थे? डेंस फॉरेस्ट। हम बना लेते हैं एक बार डेंस फॉरेस्ट, है ना। तो डेंस फॉरेस्ट थे और पहले जो नेचुरल प्रोसेसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा होते थे, लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एंड मैनी मोर। तो क्या हुआ, अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, क्या हुआ, जब हमारी अर्थ पे पूरे डेंस फॉरेस्ट थे तो नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लड्स, लाइक रेन हुई। ठीक है, रेन हुई हमारी, उससे क्या हुआ, फ्लड कोज हुई, जिसकी वजह से
जो ये फॉरेस्ट थे वो क्या हुए, नीचे सेटल डाउन हो गए सोइल के, मतलब बरीड हो गए। ठीक है, ये फॉरेस्ट जो थे बरीड हो गए। ठीक है, आपको पता है जैसे जैसे टाइम बढ़ता है सॉइल में चेंजेस आएंगे, प्रेशर जैसे ये नीचे 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 जाते रहेंगे। अगर मान लो जैसे टाइम बढ़ रहा है, इसमें क्या हुआ, सॉइल की कंसंट्रेशन क्या हुई, बढ़ती गई, जिसकी वजह से ये क्या जाते गए, नीचे जाते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रेशर जो है वो रोज कर गया, प्रेशर भी रोज कर गया, टेम्परेचर भी रोज कर गया। जब ये रोज कर गए और ये प्रेशर बढ़ता गया तो ये कंप्रेस हो गए। पहली चीज़ ये कंप्रेस हुए, फिर अंडर हीट और टेम्परेचर जितना ज़्यादा था, ठीक है, प्रेशर वगैरह की वजह से इतने डाउन में चले गए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये कंप्रेस होके एक इसे नवी फॉर्म ली जिसका नाम था कोल। ठीक है, ये स्टोरी थी कोल की। तो अगर आपको दोबारा समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे जाके दोबारा भी समझ सकते हैं। होप आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम कोल की डेफिनेशंस, कोल के यूजेस, कोल के वो पढ़ने चलते हैं। तो अब हम आ गए कोल की डेफिनेशंस पर। अब कोल की डेफिनेशन देखेंगे, बहुत ईजी। हम इसकी फ़ोटो को दिमाग में लेके आएंगे। आप फोटो देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ब्लैक सा पत्थर है, तो इससे याद आएगा पहली चीज़ ये क्या है, फॉसिल फ्यूल है। सेकेंड हार्ड है, किसकी तरह, सॉलिड की तरह। किस कलर का है, ब्लैक कलर का। इसकी 4 प्रॉपर्टीज में डेफिनेशन बन जाएगी, देखते हैं कैसे बनती है। तो देखेंगे, हम लिखेंगे इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल विच इज़ अ हार्ड सॉलिड विच इज़ इन ब्लैक इन कलर। सिंपल डेफिनेशन। नोट्स लेके बैठेंगे, 7 कॉपी लेके बैठेंगे, नोट डाउन करेंगे नोट्स, ठीक है। पोस्ट करेंगे, वीडियो के नोट्स नोट करेंगे, जो इसमें नहीं दिया वो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको लिखवा दी है, इसलिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चार्ज है यहाँ। तो अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ कोल, जो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं बहुत अच्छे मीडियम सर, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कोल। तो कमेंट करके बताएंगे यूजेस ऑफ कोल है क्या। तो यूजेस ऑफ कोल है क्या, ठीक है। पहला यूज़ हम पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल टू कुक फूड। ये एक फ्यूल की तरह काम करता है जिससे हम फूड को कुक करते हैं, ठीक है। ये फ्यूल एज इंडस्ट्री में भी काम करता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, फॉर एग्जांपल थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। सेकंड पॉइंट यही है। थर्ड पॉइंट क्या है, कोक, कोल तार और कोल गैस इसके प्रोडक्ट्स हैं। अब उनके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। फर्स्ट यू कैन सी इट इज़ कोक। इट इज़ नॉट द ड्रिंकिंग कोक आई एम सेइंग यू। जब हम कोल को प्रोसेस करते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट्स निकलते हैं। मानते हैं हम नींबू पानी बना रहे हैं तो उसमें भी कुछ प्रोडक्ट्स निकलेंगे। अब हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करा दें तब भी कोई प्रोडक्ट्स निकलेंगे। तो कोल को भी जब हम प्योरीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो उसके भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं, और वो प्रोडक्ट्स कुछ कोक, कोल तार और कोल गैस होती है। अब कोक के बारे में पढ़ेंगे, 3 प्रॉपर्टीज़। हमने हर किसी के 3-3 पॉइंट देने हैं, किसी के तो 2-2 भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स एंड बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टीज़, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी कोक की क्या होगी, ये सेम एज अ कोक की जो हमने कोल की फ़ोटो देखी है ना, वैसी इसकी दिमाग में बिठा लेंगे, ठीक है। ये ना, अब आपको मैं एक बात बताना भूल गया, स्टोरी ऑफ कोल में ना एक प्रोसेस आता है जिसका नाम होता है कार्बनाइजेशन ऑफ कोल। कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ, द स्लो प्रोसेस बाय विच कोल इज फॉर्म्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस इज नोन एज कार्बनाइजेशन, ठीक है। ये डेफिनेशन है आपकी कार्बनाइजेशन की। कोल की अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो कि कोल के बनने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो हम उसमें लिखेंगे इट इज़ नोन एज कार्बनाइजेशन। तो कैसा प्रोसेस है, वो एक स्लो प्रोसेस है। तो कोक की हम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहली बात, वो टफ है, पोरस है और ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसमें आप ऐड करेंगे कि ये 90% जो मेनली कार्बन रखता है। अब सबसे अच्छा कोल कौन सा होगा, कोल कौन सा सबसे अच्छा होगा, मतलब सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसमें मेनली कार्बन होगा, क्योंकि कोल क्या है, एक तरह का कार्बन है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन वो सबसे अच्छा सब्सटेंस, और जिसमें कार्बन नहीं वो कोल अच्छा नहीं है। कोक सबसे अच्छा होता है। इसमें तीसरा, हमेशा पहला पॉइंट इसकी हम अपीयरेंस रहेगी। सेकंड, इसमें ऐसा क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेंगे। थर्ड, हमेशा ये किस लिए यूज़ होता है और वो रहेगा, ठीक है। ये यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टील और मेटल्स में। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कोल तार। इट इज़ इन द लिक्विड फॉर्म। अब आप कमेंट करके बताएंगे आपने कोल तार देखा है। अब हम इसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल से सीखेंगे कोल तार हमने कहाँ देखा है। एज यू कैन सी GT रोड्स, NH रोड्स, इट हैज़
ब्लैक कलर रोड्स। अब आपने कभी सोचा, आपके दिमाग में कभी आया कि ब्लैक कलर की रोड्स क्यों होती हैं? अब जो इसके ऊपर का ब्लैक सब्सटेंस है, ये है क्या? जो ऊपर का ये ब्लैक सब्सटेंस है ना, ये इसको हम कहते हैं कोल तार। आपने कभी रोड बनते हुए देखा होगा तो इतने बड़े ट्रकों में एक काला सा सब्सटेंस आता है, वो ऐसे होता है, फिर रोलर चला के उसे प्लेन कर देते हैं, ठीक है। जब हम इसे प्योरीफाई करते हैं कोल को, तो एक कोल तार निकलता है जिसका हम यूज़ करते हैं। पर अब कोल तार का अगर क्वेश्चन आया कि वाई कोल तार हैज बीन डिक्रीज इन द फॉर्मेशन ऑफ रोड्स, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? एज कोल इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी and it is in exhaustible form of natural resource, therefore we have reduced the use of coal tar due to its extinction, we can say, ठीक है। अब इसमें भी हम 3 प्रॉपर्टीज लिखेंगे। पहली प्रॉपर्टी हमेशा कौन सी होगी, मैंने आपको बताया है, याद रखने का तरीका, अपीयरेंस। ये थिक लिक्विड होता है जिसकी एक अनप्लेजेंट स्मेल होती है। नोट डाउन करेंगे कि इसकी एक अनप्लेजेंट स्मेल होती है। अब आप सोच रहे होंगे अनप्लेजेंट स्मेल होती है, फिर भी परफ्यूम कैसे निकलते हैं इससे? अब मानेंगे हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और जब हम इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं मटेरियल्स को, तो उसमें से कुछ अच्छी स्मेल्स भी होती है जिससे हम परफ्यूम्स बनाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। क्या ये? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 200 सब्सटेंसेस, ठीक है, जो प्रोडक्ट्स कोल से फॉर्म। तीसरा, उसके प्रोडक्ट्स, उसके भी प्रोडक्ट्स बताने हैं। जैसे हमने बताया तो किसके यूज़ होता है, वो डाइस बनाने में, ड्रग्स बनाने में, पेंट्स बनाने में और परफ्यूम्स बनाने में यूज़ होता है। तो आपको समझ आ गया होगा कोल तार का। 3 पॉइंट हमेशा ऐसे ही बनाने हैं प्रोडक्ट्स के। फर्स्ट सिर्फ कोल में लागू होगा, पेट्रोलियम में नहीं होगा। पेट्रोलियम के सिर्फ एक यूजेज देने होते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि 5 मटीरियल एंड देयर यूजेज। ओके, सो हम इसमें लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट सबसे ईजी रहेगा हमारा, कि ये किस लिए यूज़ होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइस के लिए, अगला ड्रग्स के लिए, उससे अगला पेंट्स के लिए, उससे अगला परफ्यूम के लिए, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम कोल गैस। जब हम ये कोल और कोल तार बनता है तो एक गैस लिबरेट होती है जिसका नाम होता है कोल गैस। अब इस गैस का पहला पॉइंट सेम रहेगा हमारे पास, अपीयरेंस कैसी होती है, ये एक गैस होती है, इट्स इन गैसियस फॉर्म। सेकंड रहेगा हमेशा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इट इज़ ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू ऑब्टेन कोक, ये इसका हमने सेकंड प्रोसेस लिख दिया। थर्ड रहेगा ये किस लिए यूज़ होता है, ये एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, जो कोल प्लांट के, जहाँ से कोल माइनिंग होती है ना, उसके पास जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ होंगी ना, उस इंडस्ट्रीज़ के पास आपको ये कोल फ्यूल की तरह मिलेगा। हमने ऊपर एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल पढ़े थे, जिसमें हमने ये भी पढ़ा था कि ये कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी यूज़ होता है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी पेट्रोलियम की ओर। मैंने आपको पहले बताया है, इस वीडियो में मैं आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, हाउ मच इट इज़ लॉन्ग आई डोंट नो, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी हमारी 17 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, अबाउट 18 मिनट्स, ठीक है। अब पेट्रोलियम, आप सोच रहे होंगे पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल, ऐसे महान हस्ती बहुत है, पर हमने पेट्रोलियम को पेट्रोल नहीं मानना। पेट्रोलियम एक ऐसा सब्सटेंस है, एक रिसोर्स है जहाँ से पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, गैसलीन सब निकलती हैं। पेट्रोलियम एक रिसोर्स है और पेट्रोल, डीजल सारे इसी से निकलते हैं। तो कोई वेरी नहीं करता, कुछ वेरी करता है, जैसे कैलोरीफिक वैल्यू, इसी के डिपेंड पे हम उसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं उसके प्रोडक्ट्स को। अब हम एक बार पढ़ते हैं कि पेट्रोलियम की स्टोरी क्या है, लेट्स रीड। चलो दोस्तों, अब पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं कि उसकी स्टोरी है क्या। अब एक बात जानेंगे दोस्तों, कोल और पेट्रोलियम का अगर एक फ़र्क जानना है ना उनकी स्टोरी में, तो ये याद रखना कि जो कोल होता है ना, वो हमेशा ग्राउंड से मिला था, डीप अंडर द अर्थ मिला था, और जो पेट्रोलियम था ना, वो डीप अंडर द सी मिला था। याद रखेंगे, कोल सॉलिड तो मिला कहाँ से, ग्राउंड से। पेट्रोलियम लिक्विड कहाँ से मिला, वाटर से, समझ गए। पर एक बात याद रखना, वाटर से नहीं मिला था। बच्चों की गलतफहमी होती है, कोई नहीं बताता, कहते हैं वाटर के अंदर से मिला, पर याद रखना वाटर के अंदर से नहीं मिलता। वाटर के अंदर जो ज़मीन होती है ना, उसके अंदर से मिलता है, समझे, उसके अंदर से मिलता है। अगर वाटर में होता तो वाटर के साथ मिक्स हो जाता, तो दैट इज़ नॉट द पॉसिबल केस। इट कम्स फ्रॉम दी दैट फ्लोर विच इज़ अंडर द सी, ठीक है। अब याद रखेंगे, कोल और पेट्रोलियम में एक और फ़र्क आएगा, डिफरेंस, कि कोल जो है ना, वो फ्लोरा से बना था, मतलब प्लांट्स वगैरह से बने थे, ठीक है, प्लांट्स बरीड आउट हुए थे। बट पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में वाटर ऑर्गेनिजम्स का रोल था, उसमें फ्लोरा का रोल था, इसमें फोना का रोल है,
मतलब उसमें प्लांट्स की मदद से हुआ था, इसमें ऑर्गेनिजम्स की मदद से हुआ, जो प्लांट में रहे वहाँ सी में रहते थे। तो हम देख लेंगे यहाँ पे हम एक चीज़ आपके लिए यहाँ ड्रॉ करेंगे, सोचेंगे ये सी है, ठीक है, इसको सी मानेंगे अपना, ठीक है। अब हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे, ये आपका वाटर है मानेंगे ना, ये आपका वाटर है ना, ये आपके यहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, फिश, मैनी एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इनको क्या हुआ, ये ना जब ये डेड ऑर्गेनिजम्स, जितने भी डेड ऑर्गेनिजम्स थे ना वाटर में, वो सारे ना नीचे जाके ना यहाँ उसके बॉटम पे सेटल हो गए। कहाँ पे? बॉटल में सेटल हो गए। फिर आपको पता ही है, जैसे जैसे सैंड की लेयर्स वगैरह ऊपर उसके एक्यूमुलेट होती गई, वैसे वैसे ये भी अंदर जाता गया। फिर सेम केस लागू हो जाएगा कि ग्रेट प्रेशर और ग्रेट टेम्परेचर की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गए? द यूजफुल रिसोर्स नोन टू बी पेट्रोलियम। ये कुछ स्टोरी थी पेट्रोलियम की, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ था, डेड ऑर्गेनिज्म जो थे ना सी में, वो सेटल डाउन हो गए थे बॉटम लेयर पे। फिर जैसे उनके ऊपर सैंड की लेयर्स वगैरह वगैरह आती गई, वैसे वैसे अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम में। दिस वर द इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। नेक्स्ट गो टू दी नोट्स एंड रीड दैम, लर्न दैम एंड राइट दैम। तो दोस्तों अब हम नोट्स पे आ चुके हैं, आप पॉज डाउन द वीडियो करके नोट डाउन करना स्टार्ट कर दें। अब देखते हैं पेट्रोलियम, आपको पता चली गया डेड ऑर्गेनिज्म इन द सी से बना, ठीक है। ये उसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल, लुब्रिकेंट ऑयल एंड मैनी मोर। अब आपने उसमें एक प्रोसेस पढ़ा था कार्बनाइजेशन, तो इसमें भी एक रिफाइनिंग प्रोसेस पढ़ेंगे। पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है तभी उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी प्रोडक्ट्स कहते हैं। आपको ये वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे टेबल में, तो टेंशन नहीं लेनी। हम इसमें एक प्रोसेस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब जब हम पेट्रोल को रिफाइन करते हैं तो कुछ सब्सटेंस निकलते हैं, उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं। तो एक बार मैं डेफिनेशन बोलता हूँ, आप लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है। ये जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम है ना, बड़ी बार MCQ, फिल द ब्लैंक, सेट वगैरह क्वेश्चन में एप्टीट्यूड में पूछा जाता है कि जो रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की वो किस में होती है। ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमेशा याद रखना फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में होती है, ठीक है। अब हम कंपोनेंट्स पढ़ेंगे कुछ इसके कंपोनेंट 7 हैं और 7 के 7 आपको लर्न करने हैं विद देयर यूजेस। आपसे पूछा जा सकता है कुछ 5 बताओ और उनके यूजेस बताओ। तो पहला याद रखेंगे पेट्रोलियम गैस, पहला है पेट्रोलियम गैस, जैसे LPG और CNG। पेट्रोल, पैराफिन वैक्स, डीजल, कैरोसिन, लुब्रिकेंट। आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, जहाँ आप नोट्स उतारे हैं उनसे लर्न करेंगे, ठीक है। मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताने जा रहा हूँ, या कह लो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला रिएक्शन जो है वो ये है कि जब हाइड्रोकार्बन्स की कंप्लीट कंबशन होती है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, पर जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है विद वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट। जब भी इनकम्प्लीट इनकम्बशन होती है तो वो बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जो पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट के लिए बहुत नेसेसरी है, ठीक है। द टेस्ट यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन व्हीकल्स एग्जॉस्ट गैस। व्हीकल के पीछे से गैसें निकलती है और उनकी जो गैसेज होती है हम उन्हें कहते हैं एग्जॉस्ट गैसेज, ठीक है। उनकी एग्जॉस्ट गैसेज में कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट देखने के लिए हम एक टेस्ट का मदद लेते हैं जिसका नाम है एमिशन टेस्ट। क्या नाम है? एमिशन टेस्ट, ठीक है। थैंक यू। पेट्रोलियम एक नेचुरल रिसोर्स है, ये आप सबको पता है। ये 2 चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है, जिसका नाम है क्रैकिंग और एक का नाम है नेचुरल गैस। अब क्रैकिंग होता क्या है, आपने वर्ड याद रखना है एल्कालेन्स, एल्केन्स, ठीक है। जब भी हम एल्केन्स को हीट करते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट पर, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करते हैं और ऑक्सीजन के बिना करते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करते हैं, तो हमारे को लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्रैकिंग भी कहते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। और इसका एक ऑल्टरनेट नेम भी होता है जिसको हम कहते हैं पायरोलाइसिस। और आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रैकिंग का दूसरा नाम क्या है, वो है पैरोलाइसिस, ठीक है। अब आप देखेंगे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होता क्या है? अब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जब भी पेट्रोलियम की फॉर्मेशन होती है
तो उसके साथ एक और चीज़ फॉर्म होती है जिसका नाम है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में सीएनजी और एलपीजी आता है। एलपीजी पेट्रोलियम है, पर जो नेचुरल गैस है वो भी फॉर्म होती है जिसका नाम है सीएनजी। हमारे पास एक टर्म आती है पीसीआर है जिसका नाम है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन। ये एसोसिएशन पेट्रोलियम को कंजर्व करने के लिए बनी थी और इसने हमें 3 टिप्स दी थी जिससे हम पेट्रोल एंड डीजल को बचा सकते हैं। उसमें से पहली टिप ये थी, वी शुड इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, वी शुड स्टॉप एट रेड लाइट्स एंड द प्लेस वेयर वी स्टॉप, वी शुड स्विच ऑफ द इंजन। और लास्ट पॉइंट जो हमारा था वो ये था कि वी शुड ड्राइव एट अ कांस्टेंट स्पीड एज सून एज पॉसिबल विदाउट ब्रेकिंग। ये इसके 3 पॉइंट्स थे जो पीसीआरए ने दिए थे। आपने के क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीसीआरए, तो पीसीआरए का रोल आपका यही रहेगा कि दीज इज़ अ एसोसिएशन विच हेल्प्ड आउट टू सेव डीजल एंड पेट्रोल। तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, वेरी वेलकम, यू हैव सीन माई वीडियो। So hope you have enjoyed. If any doubt, please write in the comment box. I will be always available to you. Or after seeing all the comments and doubts, I will make a separate video for your doubts. Thank you. So from now onwards, we will be also having the live streams for Menti quizzes, and we are starting a new series which name is Stream R, that is Sprint R, which means speed revision. Okay, thank you. So please subscribe my channel for the more videos, as it is free of course. Please subscribe it and like my video for the more videos. Thank you.